classification of elements. So there were total 4 classification, out of which the first one, that is of Dobereiner trait, we have already discussed in our previous previous lecture. In that you got to know that what did Dobereiner said. He said that if you take 1, 2, 3 element, okay, he made a trait of 3 elements, 3 का पेयर बनाया उन्होंने. So the atomic mass of the second element is the average of the atomic mass of first and third. Dobereiner trait में साइंटिस्ट ने क्या बताया, उन्होंने 3 का पेयर बनाया. उस 3 पेयर में क्या था, जो फर्स्ट और सेकंड का एटॉमिक मास था, अगर हम उसका एवरेज निकालते हैं तो वो किसका एटॉमिक मास निकलेगा, सेकंड का, जो वो ट्रेड बनाए थे उसमें. तो ही कुड नॉट फाउंड मच ट्रेड ऑफ दैट. केवल 3 ट्रेड उनको मिले, 1, 2, 3, 3 के ऐसे पेयर वाले केवल 3 ही उन्हें मिले. तो दैट मेथड वाज नॉट सक्सेसफुल. तो डोबेरेनर के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड. So in year 1866 he did his discovery. So on his name, John Newland, this law was named as Newland's law. Okay, so he was an English chemist. So in 1866, what did he also got influenced by Dobereiner, जिन्होंने एटॉमिक मास यूज किया था. तो उनके डिस्कवरी के कारण many of the scientists were encouraged, in which Newland was also there. So the attempt of Dobereiner increased many chemists to correlate the properties of elements with their atomic mass. एलिमेंट की वो किससे कोरिलेट करें, उसके एटॉमिक मास के प्रॉपर्टी के बेसिस पे. ओके, तो न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास के ही बेसिस पे अपना डिस्कवरी की. वी शैल बी सीइंग व्हाट ही सेड. सो इन 1866 दिस मैन, that is the John Newland, an English scientist, what he did, he has arranged the elements in the increasing order of their atomic mass. Remember how did he arrange elements? He arranged elements in the increasing order of their atomic mass. ठीक है, न्यूलैंड ने इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास का, जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज हो रहा था उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया. ओके, तो उन्होंने क्या किया, द लोएस्ट एटॉमिक मास, ही स्टार्टेड आउट विद द लोएस्ट एटॉमिक मास. सो ही स्टार्टेड out with the lowest atomic mass. तो lowest atomic mass किसका था, हाइड्रोजन का. ओके, so he started out with hydrogen, you can say, because hydrogen was having the lowest atomic mass, and he ended up, किससे एंड किए, थोरियम. ओके, और थोरियम जो है कि किस नंबर पे आया, 56 एलिमेंट था ये. ओके, थोरियम वाज द 56th element. So basically at that time all the 118 elements were not known, only 56 elements were known. इसलिए उन्होंने अपना जो ऑर्डर था एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो हाइड्रोजन से शुरू किया और कहाँ पे एंड किए, वो थोरियम पे लाके एंड कर दिए. ओके, अब इनकी डिस्कवरी क्या थी, ये क्या बोले. He said that every 8th element repeats the property of the first. इसका क्या मतलब हुआ, suppose these are the elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब जो 7 के बाद 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, फर्स्ट से, और 9th जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेकंड से.
देखा कि एलिमेंट्स भी ऐसे ही फीचर रिपीट करते हैं. ओके, सो ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट. सो ही कंपेयर्ड टू द ऑक्टेव्स ऑफ द म्यूजिक. जो म्यूजिक के ऑक्टेव है सेम उससे कंपेयर किया इन्होंने अपने एलिमेंट्स को भी. अब चूंकि ये 8 हो गए, 8 के हो गए, तो दैट्स व्हाई इट वाज गिवन एज ऑक्टेव. ऑक्टेव मींस 8. ओके, सो दिस थ्योरी वाज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. ओके, बिकॉज 8 का पेयर बना और ये थ्योरी दिया था न्यूलैंड ने, जॉन न्यूलैंड ने, तो उनके नाम पे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हो गया. ओके, so this was the table given by Newland octave. Okay, so here you can see that the property of lithium was similar to that of sodium. So sodium was the 8th element. If you count here 1 2 3 4 5 6 7 8, after lithium the 8th element repeated was sodium. Again after sodium the 8th element repeated was potassium. Okay, so according to Newlands, he gave the table on the basis of the music note, that is sa re ga ma pa da ni. Okay, on that basis he told that sa पे जो भी elements आ रहे हैं, that is the first element are going to, and the 8th element which is going to come here will repeat. इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं दे हैव द सेम प्रॉपर्टी. सिमिलरली ये वाले के भी सेम प्रॉपर्टी है. तो ऐसे ही अगर हम देखें बेरिलियम, सो द 8th एलिमेंट कमिंग इज द मैग्नीशियम. सो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे आर हैविंग द सेम प्रॉपर्टी. ओके, सो दिस अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड दिस वाज द फैक्ट दैट ऑल द 8th एलिमेंट repeats their property. Okay, and this was the table. There were total 56 elements that were discovered. Okay, so you can see here that in some of the columns he has written 2 elements. Okay, and I will be telling you the impact of this further, that what has happened because of these 2 elements written in the one block. Okay, so the Newland's law of octave was not successful as it has shown many limitations. Okay, so you can see that here, as Newland has explained, that every 8th element repeats the property of the first one. Okay, according to the law of octave. But this was not applicable after calcium, if you see here. So the up to calcium this was applicable, that every 8th element was repeating the property. But after calcium these elements they did not possess the properties similar to that of the first. Okay, तो पहला limitation न्यूलैंड ऑक्टेव का यहीं पे हो गया कि कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स थे वो जो है कि ऑक्टेव वाले रूल को नहीं फॉलो करते थे. मींस कि 8th एलिमेंट जो था वो फर्स्ट एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी नहीं दिखाता था. तो पहला लिमिटेशन तो इनके फाउंडिंग का यहाँ पे हो गया. देन व्हाट हैपेंड कि सेकंड वाज दैट कि एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड इट वाज assumed by Newland that only 56 element exist in nature. Okay, and no more elements would be discovered in further. Newland ने ये assume किया कि केवल 56 elements हैं. उनके basis पे उन्होंने ये टेबल बनाई जो कि केवल 56 elements कंसीडर करते हैं. जबकि अगर हम आज की डेट में देखें तो हमें क्या पता चला कि there are total 118 elements that exist in nature. तो ये सेकंड लिमिटेशन हो गई उनकी. यहाँ पे भी उनकी थ्योरी फेल हो गई क्योंकि ये जो इनका टेबल था इट इज नॉट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स. ओके, इट इज कंटेनिंग ओनली 56 एलिमेंट्स, नॉट ऑल द 118 एलिमेंट्स. क्योंकि आफ्टरवर्ड्स देयर वर सेवरल न्यू एलिमेंट्स दैट वर डिस्कवर्ड whose property did not fit in the law of octaves. Okay, तो जब इन्होंने
इन्होंने ये लॉ दिया 1866 में, उसके बाद बहुत सारे और एलिमेंट्स आए जिनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे फिट नहीं होती थी। तो दिस वाज द थर्ड लिमिटेशन। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अब इन्होंने क्या किया कि हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी को फर्स्ट से कंसिडर किया कि फर्स्ट से मैच होता है। सो इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इन हिज टेबल, व्हाट न्यूलैंड डिड, न्यूलैंड हैज एडजस्टेड 2 elements in the same slot. So here you can see that cobalt and nickel is adjusted in one slot only. Okay, so this slot is not having only cobalt. He did not put nickel in the next slot. He has put in cobalt and nickel in the same slot just to adjust that 8 musical note concept. Okay, so these were the unlike elements that were in the same slot. Ab cobalt or nickel are like unlike elements which are in the same slot. Okay, so in order to fit elements in his table, Newlands adjusted 2 elements in the same slot but also put some unlike elements under the same node. अब आप एग्जांपल देख सकते हो कि इस लाइन में जो भी स्लॉट्स है, ऐसा नहीं है कि उनकी सबकी प्रॉपर्टीज एक है, बस वो अपने 8 वाले उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने इसमें डाल दिया। ओके, सो दिस वाज द फोर्थ लिमिटेशन। सो इफ यू सी दिस कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दे आर प्लेस्ड इन अ सेम कॉलम आल्सो। ओके, एंड इफ यू सी हियर फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, if we see them, they have a very different properties than these cobalt and nickel. ठीक है, निकल और कोबाल्ट को फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन वाले ही स्लॉट के अंडर में डाले वो, बट इनकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से बहुत ही वेरी करती है। ओके, तो ये भी एक ड्रॉबैक हुआ उनका। और अगर हम एक और चीज का एग्जांपल देखें कि आयरन यहाँ पे है जिसका बहुत ही डिफरेंट स्लॉट है और वो कोबाल्ट और निकल से बहुत दूर है, जबकि आयरन, कोबाल्ट एंड निकल की प्रॉपर्टी बहुत सिमिलर है। ओके, दे हैव अ वेरी सेम टाइप, दे रिजेंबल्स अ लॉट, दे हैव अ सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, सो ये सारे लिमिटेशंस थे। अब आगे क्या हुआ कि जब फर्दर डिस्कवरी होना शुरू हुई तो ये आयरन का तो मतलब बहुत सारे नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई। सो विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस आल्सो द लॉ ऑफ ऑक्टेट बिकेम इररेलेवेंट। ठीक है, जब लॉ ऑफ ऑक्टेव बिल्कुल यूजलेस, इररेलेवेंट हो गया जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई। सो दस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क विद लाइटर एलिमेंट्स ओनली, जो भी लाइटर एलिमेंट्स थे जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब जिनके के एटॉमिक मासेस कम थे, उनके लिए तो इनकी जो इन्होंने एक प्रॉपर्टी थी वो फिट बैठ रहा था, बट जो हायर एटॉमिक मास के एलिमेंट्स थे वहां पे इनका जो लॉ था वो फेल कर गया। ओके, तो यहीं पे इनका रिजेक्शन हो गया इनके लॉ को। इट वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी फिट फॉर ऑल द एलिमेंट्स। सो यू हैव सीन दैट हाउ दीज आर द लिमिटेशंस कि कैल्शियम तक तो उनकी जो उन्होंने थ्योरी थी वो सही थी, उसके बाद वाले एलिमेंट्स में नहीं फिट बैठी। उनके टाइम में केवल 56 एलिमेंट्स थे। ओके, और जो एलिमेंट्स बाद में बहुत सारे डिस्कवर हुए वो भी आप इसमें नहीं इंक्लूडेड थे। ओके, सो दीज वर द बेसिक लिमिटेशंस। किसी स्लॉट में उन्होंने 2-2 एलिमेंट्स को डाल दिया था, किसी स्लॉट्स में ऐसे भी थे जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं रखते हैं तो भी वो सेम स्लॉट में एग्जिस्ट करते थे। और जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो तब तो बिल्कुल ही इनकी थ्योरी फेल कर गई, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफर करती थी बट वो सेम स्लॉट्स में थे। ओके, सो दिस लॉ वाज वेरी यूजलेस, इट वाज वेरी इररेलेवेंट, एंड एट दिस पॉइंट दिस लॉ वाज रिजेक्टेड एंड अ न्यू लॉ came by the name of a scientist Mendeleev. He gave a new law. So let's study the third law, that is the Mendeleev's law. What does it say? Okay, so we have seen the table of this Newland law of octave, and we have
स्लॉट। ओके, जैसा कि आपने देखा इन वन स्लॉट। कोबाल्ट और निकिल को एक ही स्लॉट में रख दिए। ओके, तो यहाँ ये भी गलत था। फिर फर्दर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे, देयर वर सो मेनी एलिमेंट्स which do not have the properties that are similar to the plot in which they are. Okay, so all elements in one plot do not have same properties. Okay, so finally ये हुआ कि जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो जो लोअर मास एटॉमिक मास के एलिमेंट्स हैं, लोअर एटॉमिक मास के एलिमेंट्स हैं, उनके लिए तो फिट था। ओके, इट वाज फिट फॉर देम, बट जो हायर एटॉमिक मास के एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी यूजलेस था, बिल्कुल भी अनफिट था। So this law has been rejected. Okay, so Dobereena trait was rejected, then this Newland's law of octave was rejected, and now another scientist came called Mendeleev. Let's see what did he say about classification of elements. Okay, so now we will be seeing the Mendeleev's classification of elements. So the third classification of element was the Mendeleev's classification. Okay, which classification? Mendeleev's. Okay, so Mendeleev's periodic table, in fact you can say, so Mendeleev gave a very important contribution, you can say, he was the one who has given the early development of this periodic table. Okay, periodic table का जो development था, जो कि finally modern periodic table के नाम से जाना गया, जो आज भी हम follow करते हैं, उसका जो एक early development था, उसको किसने दिया? Mendeleev ने दिया। Okay, what he did, he has arranged the elements in form of a table. इन्होंने एक टेबल बनाई और उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया। ओके, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बहुत हद तक मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से मैच करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग इन डिटेल, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस चैप्टर इज इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, and if I will be talking about the topics, mostly the question comes from this Mendeleev's periodic table, and after that we will be studying about the modern periodic table. ये दोनों बहुत important है, इन दोनों से maximum questions आते हैं। Okay, so you must be very careful and please listen carefully what I am telling you. So this Mendeleev was the first man to contribute for the periodic table. एक टेबल के फॉर्म में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ओके, सो ही हैज अरेंज्ड द एलिमेंट्स, व्हाट ही डिड, ही हैज अरेंज्ड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे, डोबेरीना का और दूसरा न्यूलैंड्स का। इन दोनों ने एक ही कॉन्सेप्ट लिया था, मींस एक ही कैरेक्टरिस्टिक ली थी, दैट वाज द एटॉमिक मास। इनका जो क्लासिफिकेशन था दोनों का एटॉमिक मास के बेसिस पे था। इन्होंने ट्रेट बनाया था 3-3 का पेयर और ये 1 का पेयर, ठीक है। लेकिन अब ये जो मेंडलीव आए, इन्होंने क्या किया, ये बहुत सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को लिए, जैसे कि क्या था, एटॉमिक मास तो लिए ही, ठीक है, एटॉमिक मास तो इन लोगों ने भी लिया था, डोबेरीना ने भी और न्यूलैंड्स ने भी, बट ये क्या देखे कि ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को
elements were known at the time of Mendeleev. Okay, so if you see here only 56 were there, but at the time of Mendeleev 63 elements were known. So what he did, he find the relationship, okay, between the atomic mass of the element and their physical and chemical properties. You can in fact say physical and chemical. इन लोगों ने बस एटॉमिक मास की बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था, डोबेरिना ने भी और न्यूलैंड्स ने भी, लेकिन मेंडेलीव ने क्या किया, मेंडेलीव ने एटॉमिक मास को कंपेयर किया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों के साथ, ठीक है, केवल एटॉमिक मास को नहीं लिए बल्कि उसके साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के भी साथ उसको कोरिलेट किए, उसको कंपेयर किए। अब जो थर्ड चीज आती है वो ये है कि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ओके, तो इन केमिकल प्रॉपर्टीज व्हाट डिड मेंडेलीव कंसीडर, डू यू नो? Mendeleev has concentrated on the compounds that are formed of the elements with which they are formed, hydrogen and oxygen. Mendeleev ने उन एलिमेंट्स पे फोकस किया जो कि किन से बने होते हैं, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ओके, तो बेसिकली उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों लिया? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. This is because he has selected hydrogen and oxygen only, as आपने कभी भी कोई रिएक्शन पढ़ा होगा तो most of the time you must have got to know that कि there is a much reaction with hydrogen also and with oxygen also. So, okay, so these two elements are very reactive, okay, so most of the elements are formed of the compounds of hydrogen and oxygen. This was the reason why he has chosen the elements that are made up of hydrogen and oxygen, क्योंकि हमें भी पता है कि ज्यादातर जो कंपाउंड्स बनते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बनते हैं. आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, कोई भी रिएक्शन हो, ये इन दोनों के साथ रिएक्शन जरूर होगा, और तो रिएक्शन होंगे ही बट ये रिएक्शन जरूर होगा. इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं उनको लिया केमिकल प्रॉपर्टीज में, एंड ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड ऑफ विथ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. ये जो है कि ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ओके. केमिस्ट्री में वैसे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आप किसी भी चैप्टर में पढ़ो, कहीं ना कहीं आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात जरूर आएगी. केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन तो हमारे लाइफ में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके. सो व्हाट ही डिड, अब इनके टाइम में कितने एलिमेंट्स थे? 63 एलिमेंट्स थे. तो इन्होंने क्या किया, ये 63 कार्ड्स लिए. इनका जो तरीका था क्लासिफिकेशन का वो बहुत ही अच्छा था. What he did, he has taken 63 cards. Okay, so he took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element. अब जिस किसी भी एक इस 63 एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को ये उठाए और यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज को लिख दिया, सेकेंड एलिमेंट को उठाए और यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी को लिख दिया. ऐसे करते करते इन्होंने 63 कार्ड्स बनाए और हर एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक एक कार्ड पे लिखते गए, ओके. अब इससे क्या फायदा हुआ कि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी उनके सामने थी, ठीक है. उन्होंने सारे कार्ड्स को लगा दिया, एक वॉल पे लगा दिया. अब क्या है कि किस एलिमेंट 1 की प्रॉपर्टी, 2 की और पूरे 63 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ऐसे दिख रही है. अब क्या होगा, इट इज वेरी इजी टू कंपेयर. अब आपके सामने है सारी चीजें, इट इज वेरी इजी टू कंपेयर. फॉर
1 के साथ जिनकी प्रॉपर्टी मैच हो रही है वो एक तरफ शॉर्ट किया, 2 के साथ, 3 के साथ, ऐसे वो लॉट बनाते गए कि सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी और सिमिलर प्रॉपर्टी को रखते गए। और उन्होंने क्या किया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज आई जिन कार्ड की, उनको एक साथ पिन कर दिया। सपोज 1, 8, 16 की सिमिलर प्रॉपर्टी आई एलिमेंट्स की, तो इनको एक साथ पिन कर दिए। नेक्स्ट जिनकी प्रॉपर्टीज एक साथ आई उनको पिन टुगेदर कर दिए एक वॉल पे। ओके, सो ही हैज पिन टुगेदर द सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट ऑन अ wall. Okay, so he observed that most of the elements got placed in a periodic table and were arranged in the order of their increasing mass. Okay, तो जो elements थे periodic table में वो कैसे अरेंज हो रहे थे? अपने increasing mass के basis पे elements का arrangement हो रहा था। So it was observed that there periodic reoccurrence of elements with similar physical and chemical properties। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि एक तो पहले वो इंक्रीजिंग ऑर्डर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे थे, जिसका सबसे कम मास था वो सबसे पहले आ रहा था पीरियोडिक टेबल पे, उससे ज्यादा वाला उसके बाद आ रहा था, और सबसे लास्ट में जिसका सबसे हाईएस्ट एटॉमिक मास था वो सबसे बाद में आ रहा था। दूसरी चीज उन्होंने क्या देखी कि हर एक पीरियड के बाद, मतलब कुछ एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया, फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट आया उसकी प्रॉपर्टी इससे मैच हो रही है, अगले एलिमेंट इससे मैच हो रही है, तो हर कुछ एलिमेंट्स के बाद जो प्रॉपर्टी थी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट की, वो रिअकर कर रही है आफ्टर एवरी इंटरवल। जैसे कि यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द डेज इन अ वीक। एक्सक्यूज मी, आप देखते होंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे आ गया। ऐसे ही कि जैसे मंडे रिअकर हुआ वैसे ही कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज फिर से रिअकर हो रही थी। ओके, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उस बेसिस पे मेंडलीव मेड अ पीरियोडिक लॉ। ओके, एंड दैट पीरियोडिक लॉ states that the properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. Okay, क्या बोला? इनका लॉ क्या स्टेट करता है? Okay, that is a very important thing to remember. As he has arranged the elements in the increasing order of their atomic mass, he said the properties of elements, what did he say? The properties of the elements, okay, are the periodic function, okay, of their atomic masses. Atomic masses. Okay, so if anybody is going to ask you what does the Mendeleev periodic table states, it states that the properties of the element are the periodic function of their atomic masses. एक periods में function जो है, जो भी element की properties हैं वो occur कर रही है, reoccurrence. Okay, एक period में, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कोई है, हर एक इंटरवल एक पीरियड के बाद जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो रीअकर करती है।
were the periods. Okay, so next we are going to see कि इन जो मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन किया उसके मेरिट्स क्या थे. Okay, so let's see the merits. ओके, सो मेंडलीव क्लासिफिकेशन के मेरिट्स क्या थे. सबसे पहली चीज तो ये थी कि ही वाज द फर्स्ट टू मेक अ पीरियोडिक टेबल, और यू कैन से दैट कि ये सबसे पहले इन्होंने इनिशिएटिव लिया पीरियोडिक टेबल बनाने का. दूसरी चीज इन्होंने क्या की, जो इनका टेबल था पीरियोडिक टेबल, ओके, आई विल बी शोइंग यू दैट आल्सो. ही हैज लेफ्ट gaps in that. अब उस इन्होंने assume किया कि फ्यूचर में और एलिमेंट्स आएंगे और उनके लिए इन्होंने गैप छोड़ा, जबकि यही ड्रॉबैक था न्यूलैंड का. न्यूलैंड ने कोई गैप नहीं छोड़ा, तो जो बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनको एडजस्ट करने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं बची थी. बट इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया कि he left gaps in his periodic table instead of looking upon the gaps as defects. वो gaps इनके defects नहीं थे. He predicted it. क्या अच्छा अब gap क्यों छोड़े? उनका खुद का एक prediction था. उनका prediction ये था कि जो existence है some element का, ठीक है, some elements तो exist कर रहे हैं, but still there are many that has been not yet discovered at this time. Okay, so Mendeleev named the undiscovered element. जो elements discover नहीं हुए थे उनको इन्होंने एक prefix दिया. He gave a prefix to those elements, ठीक है, जिसको कि संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, संस्कृत न्यूमरल it is called as ekka. Ekka means one. What does this ekka means? Ekka means one. तो इन्होंने एक प्रीफिक्स दिया उन एलिमेंट्स के लिए ekka, which means one, to the name preceding element in the same group. जिस ग्रुप में वो आएंगे आगे नाम होगा उनका, उसको सबको एक प्रीफिक्स दिए. ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस क्या हुआ कि जैसे कि स्कैंडियम है, गैलेरियम है या जर्मेनियम है, वो लोग बाद में डिस्कवर हुए तो उनके लिए इन्होंने गैप्स छोड़ के रखा था और एक प्रीफिक्स दिया इन्होंने ekka, that stands for one. Okay, so this provided convincing, okay, evidence for both the correctness and usefulness of periodic table. इससे periodic table बहुत ही strong हो गया इनका. ये जो गैप्स इन्होंने दिया और एक जो prediction इन्होंने दिया उन undiscovered elements का एक prefix दिए उनको ekka या one के नाम से. So further it was an extraordinary success of Mendeleev, you can say, prediction that led to the chemist not only to accept this periodic table but also recognize him as the originator of this concept. ठीक है, इनके periodic table को accept तो किया ही गया, इनको इस चीज के लिए माना गया कि Mendeleev was the first जिन्होंने originate किया, जो कि first time periodic table का नाम लेके आए या first time इन्होंने कुछ
लो होता है, जैसे कि हीलियम है या बहुत सारे ऐसी नोबल गैसेज है, नियॉन है, ऑर्गन है, ये सब है, ठीक है। तो वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल वाज दैट कि जब ये गैसेस डिस्कवर्ड हुई, व्हेन दीज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस यू कैन से दे वर डिस्कवर्ड, दे कुड बी प्लेस्ड इन न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। ओके, सो इनका तो अपना एक ऑर्डर था ही, सो दीज नोबल गैसेस दे वर प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप, और जो पहले का इनका पीरियोडिक टेबल था, जो इनका ऑर्डर था, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। ओके, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेंडेलीव के लिए। नाउ वी शैल बी सीइंग द टेबल मेंडेलीव हैज गिवन। लेट्स सी द पीरियोडिक टेबल। So here you can see this was the periodic table that was given by Mendeleev. So these are the groups 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and these are the periods in which different series of the compounds were kept. So although he made a very good composition, this was the first time that the periodic table came in existence, but there were so many limitations with this also. So we shall be seeing the limitations that were with this periodic table. If you see, the position of the hydrogen was not fixed. Okay, so Mendeleev could not fix the position of hydrogen in his periodic table. What happened? The electronic configuration of hydrogen resembles to that of alkali metals. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का था, वो अल्कली मेटल्स के साथ बहुत रिजेंबल करने लगा। ओके, अब हुआ क्या कि लाइक अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन कंबाइंस विद हैलोजेंस, ऑक्सीजन्स एंड सल्फर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूलाज। जैसे अल्कली मेटल्स कंबाइन करते हैं, जैसे कि हम एक अल्कली का एग्जांपल लेते हैं, Na कंबाइंस विद क्लोरीन and it forms a sodium chloride, that is NaCl. Similarly क्या हुआ, हाइड्रोजन जो H है वो भी क्लोरीन से कंबाइन करने लगा और it is going to be form hydrochloric acid, that is HCl. So HCl, NaCl, ठीक है, HCl is a compound of hydrogen and NaCl is a compound of an alkali. तो ये सेम टाइप का बिहेवियर देने लगा, जैसे कि H2O भी है, ऑक्सीजन से भी हाइड्रोजन कंबाइन करता है वाटर देने के लिए, वैसे ही अल्कली मेटल लाइक सोडियम है वो भी Na2O बनाता है। सिमिलरली सल्फर से भी हाइड्रोजन कंबाइन करता है, H2S बनाता है, और आपका अल्कली मेटल Na जो है दैट आल्सो कंबाइंस एंड गिव्स Na2S। तो हाइड्रोजन वाज गिविंग अ कैरेक्टरिस्टिक लाइक अल्कली मेटल्स, इट स्टार्टेड टू कंबाइन विद हैलोजेंस, ऑक्सीजन्स एंड sulfurs. Okay, so on the other hand, what happened, just like halogens, hydrogens also exist as diatomic molecule. halogens की तरह आपका ये जो हाइड्रोजन था ये भी एक diatomic molecule था and it combines with metals and non-metals to form covalent bond. Okay, metals और non-metals से हाइड्रोजन कंबाइन करता था, तो हाइड्रोजन की कोई पोजीशन नहीं हो पाई क्योंकि हाइड्रोजन बहुत सारे फीचर्स दे रहा है। एक तरफ वो अल्कली मेटल्स की भी तरह बिहेव कर रहा है, दूसरी तरफ वो हैलोजेंस की भी तरह बिहेव कर रहा है। सो द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी फिक्स्ड कि उसको अल्कली मेटल्स के साथ रखा जाए या कि उनको हैलोजेंस के साथ रखा जाए। ओके, तो ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था एक। दूसरी चीज क्या हुई कि फर्दर आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड। जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो इनके पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की कोई पोजीशन नहीं थे। ओके, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट डिसाइडेड इन दिस टेबल ऑफ मेंडेलीव एंड फर्दर वी केम टू नो दैट फॉर एग्जांपल वी कैन टेक दैट क्लोरीन हैज गॉट टू आइसोटोप्स, one is chlorine 35 and one is chlorine 37. But what you can see, if you see in this table, the chlorine has been given only one position. Okay, तो क्लोरीन का आप यहाँ पे देख सकते हो, here it is here only, तो क्लोरीन 35 लिया जाए या क्लोरीन 37 लिया जाए तो आइसोटोप्स के कोई भी पोजीशन नहीं थे इनके उसमें, जबकि आप देख सकते हो here
many columns जिनको भी बाद में further fit किया गया, but बहुत सारे ऐसे भी थे जो existing थे but उनको नहीं वो consider कर पाए। और थर्ड जो लिमिटेशन थी इस मेथड की वो ये थी कि no regular trend in atomic mass, position of some elements with lower atomic mass before the higher atomic masses. Okay, so if you see here in this table, the example is that कि nickel was placed before cobalt. Okay, जबकि निकल का कोबाल्ट वॉज प्लेस्ड बिफोर निकल। ओके, जबकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है, हियर यू कैन सी इन दिस टेबल हियर कि Fe is 55, that is good, but after that comes cobalt, that is 58.93, and nickel was after cobalt, that is 58.71, जबकि निकल का एटॉमिक मास कोबाल्ट से कम है। तो इनके जो थ्योरी थी, इनका जो पीरियोडिक टेबल का लॉ था, उसके हिसाब से निकल शुड कम बिफोर कोबाल्ट, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो एक कोबाल्ट था बिफोर निकल, दैट वाज आल्सो द लिमिटेशन ऑफ हिज periodic table. Okay, so we have seen that how these periodic tables are being shown, और इसमें भी मेंडलीव के भी पीरियोडिक टेबल में एक लिमिटेशन आ गई। सो फर्दर लास्ट में एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना 1923 में, जो कि ग्लोबली एक्सेप्ट हुआ और आज भी हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो दिस वाज वेरी गुड, ओके, इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। So this was all for today. The next part of this chapter, that is the part 3, which contains the modern periodic table, will be continued in my next video. So students, I am very glad to announce you that Ollie Scholar has got its app now. There every features is there. You can have the live classes. You can see in this this is a screenshot of our app. All the courses for class 4 to 10th are there, and all the notes are there, PDF notes are there, live classes is there, video classes is also there. There is a MCQ questions are also available. So I would request you that this app is going free nowadays. We are not costing you anything. So you should go and just download this app and just activate it and go through these sessions. You will just enjoy it. You will be very helpful for your examination point of view and for other purposes also. So thank you so much. Thank you for watching my video. Okay, thank you so much. Please give a like button to us, and if you have not subscribed our channel yet, please do subscribe it. Thank you so much.